Hello, viewers. In this session, let us understand how the mathematical functions works in the C language. Let us start with some of the mathematical function. So let me write the comment line first. Write a C program. Right. So write a C program to illustrate the use of ABS log 10. This is opening and closing curly brace. Okay, log 10 POW function, that is power function, and EXP exponential function. So we are going to discuss these mathematical functions to find out the absolute value logarithm of x and e to the power of y and x to the power of y. So let us start this program by including some of the header files like sdio.h header file, hash include conio.h header file, hash include math.h header file, because all these ABS, log 10, power, exponential, all these mathematical functions are included into math.h header file. So that's what we are using, math.h header file. Next is the main. Main is the special function of every C program, opening curly brace of the main. Then float data type. Let us declare some of the variable like x, comma, y, comma, z, comma. To store the values, az is used, xpy is used, lg is used for logarithm, xp is used. Let us put a semicolon, then write clr scr clear screen command, and let us assign the value to all these variables. X equals to 2.0, y equals to 3.0, z equals to -4, semicolon. Now let us write the expression az equals to ABS function, absolute function, and passing the value of the z, that is -4, to this function. Next is the LG variable equals to log function, opening parenthesis, log 10, opening parenthesis, and we are passing the x value. X value is 2.0 to log function. Next is the XP variable equals to EXP, opening parenthesis, y value we are passing, that is 3.0. Next is XPY equals to POW, power function, power of x to the power of y. So how we will write in the C? POW in parenthesis x comma y, closing parenthesis, semicolon. So this is the x to the power of y. And after calculating all these values, the time to print these values with the help of printf statement, absolute value of z equals to %f is a conversion character, or here we say format specifier, then az variable which holdings the value of the absolute value. So printf, opening parenthesis, opening double quotation, logarithm of x equals to %f slash n double quotation comma lg, closing parenthesis, semicolon. Printf, opening parenthesis, opening double quotation,
then e to the power of y equals to %f double quotation or /n double quotation comma xp semicolon. Next printf to print the x to the power of y value double quotation x to the power of y equals to %f conversion character or format specifier, we say xpy. To hold the screen we use the getch semicolon, then return statement, return 0 semicolon, closing curly brace. Let me compile this program. 0 error 0 warnings. Before I run, let me tell you once again, इस प्रोग्राम में हमने क्या किया है, maths.h हेडर फाइल का इस्तेमाल किया है. maths.h हेडर फाइल जो है इसके अंदर सारे मैथमेटिकल फंक्शंस होते हैं. जो फंक्शंस मैंने कमेंट लाइन में लिखा है ये सारे फंक्शंस इस एक हेडर फाइल में होते हैं. तो x y z इन तीनों को हम वैल्यू यहाँ पे असाइन कर रहे हैं. x को 2, y को 3 और z को -4 बोल के वैल्यू असाइन कर रहे हैं. बाकी के जो 4 वेरिएबल हमने लिया है जहाँ पे हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं, यानी इन फंक्शन का इस्तेमाल करके वैल्यू को असाइन कर रहे हैं, कंप्यूटेड वैल्यू. एब्सोल्यूट फंक्शन क्या करेगा, z का एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करेगा और az में स्टोर करेगा. log10 लॉगरिथम वैल्यू फाइंड आउट करेगा x का वैल्यू ऑलरेडी हमने 2.0 दिया है तो उसका वैल्यू lg में स्टोर हो जाएगा. ठीक है, lg में स्टोर होगा और उसके बाद e टू द पावर ऑफ y यानी e टू द पावर ऑफ y का फाइंड आउट करने के लिए, एक्सपोनेंट वैल्यू ऑफ y का फाइंड आउट करने के लिए हमने y के वैल्यू को इस exp फंक्शन में पास किया हुआ है, जो कि कैलकुलेट होने के बाद इसका जो वैल्यू है यानी y का वैल्यू 3.0 है, यानी e टू द पावर ऑफ y हो जाएगा 20 पॉइंट समथिंग. तो वो वैल्यू स्टोर होगा xp में. जिसके बाद पावर फंक्शन हम इस्तेमाल कर रहे हैं, x टू द पावर ऑफ y मुझे फाइंड आउट करना है. सो x का वैल्यू है 2, y का वैल्यू है 3, x टू द पावर ऑफ y यानी 2 टू द पावर ऑफ 3, 2 इंटू 2 इंटू 2 हो जाएगा, है ना. सो 2 टू द पावर ऑफ 3 यानी x टू द पावर ऑफ y. सो वो हमने POW फंक्शन में लिखा हुआ है x कॉमा y, x टू द पावर ऑफ y. कुछ इस प्रकार से मीनिंग बनता है इसका मैथमेटिक्स में. सो xpy वेरिएबल में ये वैल्यू स्टोर हो जाएगा. ठीक है, तो इन वैल्यू को हम प्रिंटफ के जरिए प्रिंट कर रहे हैं. जो 4 प्रिंटफ हमने लिया है क्योंकि 4 वैल्यू को मुझे प्रिंट करना है. az यानी एब्सोल्यूट वैल्यू, lg यानी कि लॉगरिथम का वैल्यू, xp यानी एक्सपोनेंशियल ऑफ पावर ऑफ y और उसके बाद xpy वेरिएबल में क्या है, x टू द पावर ऑफ y का वैल्यू स्टोर है. तो इस प्रोग्राम को हमने कंपाइल किया, कोई एरर कोई वार्निंग नहीं बताया. रन करेंगे इस प्रोग्राम को, आप देखेंगे तो एब्सोल्यूट वैल्यू -4 जो हमने पास किया था उसका यहाँ पे 4.00 बोल के आ रहा है और लॉगरिथम ऑफ x का वैल्यू 2.0 था, लॉगरिथम का वैल्यू जो है वो 0.301030 वैल्यू आ रहा है. e टू द पावर ऑफ y का वैल्यू कितना आ रहा है, 20 आ रहा है. तो हमने वैल्यू क्या पास किया था, y का वैल्यू यानी कि 3.0 हमने पास किया था. e टू द पावर ऑफ y एक्सपोनेंशियल ऑफ y, x टू द पावर ऑफ y 8 बोल के वैल्यू आ रहा है. x का वैल्यू 2.0, y का वैल्यू 3, x टू द पावर ऑफ y 8 वैल्यू आ रहा है. ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से इन मैथमेटिकल फंक्शंस का इस्तेमाल हम कर सकते हैं. आपको ये प्रोग्राम समझ में आया होगा कि किस प्रकार से इन प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट किया जाता है. बिना math.h हेडर फाइल के ये कोई फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं होगा. मान लीजिए कि हमने नहीं लिखा
चलिए मैं इसको रिमूव करता हूँ और इसके बाद अगर से मैं कंपाइल करता हूँ इस प्रोग्राम को तो ये एरर बता रहा है क्योंकि 4 फंक्शन इस्तेमाल किए हैं, 4 एरर यहाँ पे बता रहा है। और एरर भी आप देख सकते हैं, फंक्शन abs शुड हैव द प्रोटोटाइप log10 exp pow शुड हैव प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप का मतलब है कि हेडर फाइल जो कि हमने डिक्लेयर नहीं किया। जब CLR SCR लिखता हूं और कोनियो नहीं लिखूंगा तब भी वो बोलेगा कि CLR SCR शुड हैव द प्रोटोटाइप बोल के। ठीक है, तो कंपलसरी मुझे क्या करना पड़ेगा, हैश इंक्लूड mat.h लिखना है। मैं सिर्फ क्या लिख रहा हूं अभी, mat.h हेडर फाइल को लिख रहा हूं और अभी मैं कंपाइल करूंगा तो 0 एरर 0 वार्निंग्स बता रहा है। अभी CLR SCR जो है, चलिए इसको रखता हूं एज यूजुअल इस फंक्शन को, और जो conio.h है इसको मैं रिमूव करता हूं। और इसके बाद अगर से हम प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे तो 2 एरर बता रहा है और वो बोल रहा है कि CLR SCR और getch शुड हैव अ प्रोटोटाइप, यानी इन दोनों फंक्शंस के लाइब्रेरी फंक्शंस या सपोर्टिंग फंक्शंस जो होते हैं वो conio.h हेडर फाइल में होते हैं, जिसको हमने डिक्लेयर नहीं किया यहाँ पे। जब डिक्लेयर नहीं करेंगे तो वो एरर बताएगा। जब मैं डिक्लेयर करूंगा हैश इंक्लूड conio.h, ठीक है, इस प्रकार से conio.h, और अभी मैं कंपाइल करूंगा तो 0 एरर 0 वार्निंग बताएगा। इसका सीधा सीधा मतलब है कि जो भी लाइब्रेरी फंक्शंस होते हैं वो लाइब्रेरी फंक्शन का हेडर फाइल आपके प्रोग्राम के शुरुआत में डिक्लेयर करना है, तभी जाके आपके प्रोग्राम में कोई एरर नहीं होगा। होप आपको ये प्रोग्राम समझ में आया होगा। सो कोई डाउट है तो कमेंट लाइन में डाउट को क्लैरिफाई कर सकते हैं। कमेंट लाइन में आप अपने क्वेश्चंस क्वायरीज जो भी है लिख सकते हैं। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक शेयर करना भी ना भूलें। सो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।